اچھے ہیں اور لمبی جدوجہد بھی ہم نے مل کر کی ہے. اس وقت جو حکومت ہے وہ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈیلیور کر سکے گی، اور حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ جس طرح کی اسمبلی ہے یہ انتہائی کمزور اسمبلی ہے، اور حکومت بھی میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی اکثریت ملک پر حکومت کر رہی ہے، بلکہ مسلم لیگ کی تعداد حکومت کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ حکومتی بینچوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر کبھی تکلیف ان کو محسوس ہوئی تو پھر ان کی مرضی ہے تکلیف دور کرے یا تکلیف میں اضافہ کرے. یہ نہیں کہ ضروری کو ختم کریں گے اس کے ذریعے. آپ کا اس میں نام نہیں ہے. میرا کبھی کسی زمانے میں کوئی نام آیا ہے؟ پوری تاریخ دیکھ، اور آج تک بھی میں اگر میں الیکشن کے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے اپنے ڈی آئی خان یا ٹانک کے مقامی کورٹ میں نہ جاتا تو مجھے یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ کورٹ کا نقشہ کیا ہوتا ہے نامزدگی. تو زندگی بھر عدالت میں اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بہتری کرے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب، آج سے 3 سال پہلے آپ نے ایک لانگ مارچ جو سکھر سے کیا تھا، بڑا لانگ مارچ تھا. یہیں پہ آپ سے جب گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم کچھ نہ رزلٹ لے کے واپس آئیں گے. پھر آپ اسلام آباد میں پڑاؤ کیا اور پھر آپ خالی ہاتھ واپس آئے اس یقین دہانی پہ کہ 3 سال قبل جو فروری آئے گا اس میں باجوہ صاحب نے آپ کو یقین دہانی کروائی مختلف حلقوں میں کہ ختم ہو جائے گی عمران خان کی حکومت، جس کے اوپر آپ واپس آئے. لیکن اس طرح سے نہیں ہوا. اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ جو آپ کا لانگ مارچ تھا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی قسم کی رضامندی شامل تھی، اور ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بغیر اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے کوئی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو ابھی یہ جو آپ اپنی تحریک اب چلا رہے ہیں نامزدہ الیکشن کے خلاف، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے میرے خیال میں اب اس ذہنیت کو ختم کرنا ہے. سوال تو آپ کا اتنا لمبا ہے کہ مجھ سے زیادہ معلومات آپ کو ہیں، لیکن اس ذہن کو ختم کرنا ہے کہ کیا ہم ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے رضامندی کے بغیر کوئی تحریک نہیں چلا سکتے؟ کیا ہمارا ہر الیکشن ان کی مرضی سے ہوگا؟ کیا ہمارے ہر الیکشن کا نتیجہ ان کی مرضی سے ہوگا؟ اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اور اگر قوم نہیں اٹھے گی اور قوم اپنے اس ووٹ کو تحفظ نہیں فراہم کرے گی تو پھر ہم مسلسل غلامی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک سرکاری محکمہ وہ ہمارا حاکم ہو، اور ہم جو آئین میں حکمران کہلاتے ہیں، پارلیمنٹ جو حکمران کہلاتی ہے، وہ ماتحت ادارے کی شکل اختیار کر لے، یہ چیز کسی قیمت پر ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اب ہم اپنی جماعت کے طور پر ہم نے اب تک 3 جلسے کیے، 3 عوامی اسمبلیاں کی ہیں، اور عوام کا جو اس پہ رد عمل تھا بہت ہی حوصلہ افزا تھا. اور انشاءاللہ آپ 1 جون کو مظفر گڑھ میں بھی اسی طرح کا عوام کا ایک رد عمل دیکھیں گے، کس طرح وہ اس جلسے میں آتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے بھیج رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم کوئی کمی نہیں دکھائیں گے. حکومت کی عمر سر آپ کتنی دیکھ رہے ہیں؟ موجودہ حکومت کی سر عمر کتنی دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں حکومت ہے ہی نہیں، بس کچھ لوگوں کو اچھے مناصب مل گئے ہیں، اس کو انجوائے کرتے رہیں گے، باقی کچھ نہیں ہے. مولانا صاحب، آپ نے ہمیشہ ایک مفاہمت کی سیاست کی، اور آپ کا نام اس لحاظ سے بڑا قابل قدر نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ مفاہمت کے زرداری صاحب کے بعد آپ بھی مفاہمت کے باش ہیں. تو ابھی تو مستقبل میں ہے اس طرح کا کوئی چانس کہ آپ دوبارہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے مفاہمت کریں گے؟ دیکھیے، لفظ مفاہمت ہے تو اچھا لفظ، برا لفظ تو نہیں ہے، لیکن جب اپنے ہی چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر یہ ہے وہ وقت کہ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں، اور انشاءاللہ قوم ہمارے ساتھ ہے اور رہے گی انشاءاللہ. اور اس ملک میں ظاہر ہے کہ ہم تو جب جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جب آئین کا ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے تو پھر آئین کو بالادست ہونا چاہیے، آئینی اداروں کو بالادست ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملازم بھی ہو اور وہ حاکم بھی ہو، بیک وقت 2 چیزیں نہیں ہو سکتی. مولانا صاحب، بڑی باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں کہ پی ٹی آئی دوبارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہی ہے، بات چیت کرنے جا رہی ہے. کس نظر سے دیکھتے ہیں اگر یہ تحریک انصاف اسی طرف ڈگر پہ چل پڑتی ہے
तो एक जिस तरह तहरीक चलाने जा रहे हैं आप, तो कामयाब तहरीक नजर नहीं आती क्योंकि असल में इसी बेटा में मौलाना साहब ऐड कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान की जमानत ले ली गई है, तो इस फैसले को आप किस नज़र से देख रहे हैं? इसमें जरा अदालत का फैसला है, अदालत को इख्तियार हासिल है, और उसमें मैं खुद तो मुद्दई नहीं हूँ उसके खिलाफ। लेकिन जो मुफाहमत चल रही है अंदरूनी खाना आपस में इस्लामाबाद में बात, अंदरूनी खाना अगर आपके पास कोई मालूमात हो तो मुझे भी फराहम कर दें, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। मौलाना साहब, अगर आप इलेक्शन जीते तो फिर सही था इलेक्शन, या अब उसको नहीं मौका मिला? मैं पिछली दफा नहीं जीता था, अब की जीता हूँ, ये मद्देनजर रहे। मौलाना, आपके शहर से वजीर आला और गवर्नर KP के बनाए गए हैं, इतना अहम शहर आपका हो गया, क्या कहेंगे इसको? मेरे ख्याल में मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा मद्दे मुकाबिल जो है वो दोनों बड़े मनसब ले रहा है, और एक सूबे का गवर्नर और वज़ीर आला मेरे हल्के से जो जीते नहीं है लेकिन बस हैं। जब हुकूमत साजी हो रही थी तो जी? जब ये हुकूमत साजी हो रही थी जनरल इलेक्शन के बाद, तो किसी स्टेज पे आपको भी सदर पाकिस्तान की ऑफर हुई थी? सदर पाकिस्तान के ऑफर नहीं हुआ करती। ये गलत बात है कि मैं ऐसी पॉलिटिक्स करूं कि जिसमें हम ऑफर्स की बुनियाद पर चीज़ें कबूल करेंगे। कौन होता है जो मुझे सदारत का ऑफर करता है? कौन होता है जो मुझे वज़ीर आज़म का ऑफर करता है? होता कौन है जो मुझे वज़ीर आला का ऑफर करता है? अवाम अगर मुझे वोट देगी और मैं इस पोजीशन में हूँ तो मैं सदर भी बनूंगा, मैं वज़ीर आज़म भी बनूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर भी बनूंगा, और वो मेरा आईनी और कानूनी इस्तेहकाक होगा। और इसी असास पर हम ये इस सियासत में हिस्सा ले रहे हैं कि ये हमारा इस्तेहकाक बने, और ये कि 5 सीटों के साथ मैं कहूँ कि अब मैं सदर बन जाऊँगा, ये कोई मेरी सियासत तो नहीं हो सकती। फिर जी मौलाना साहब, ये बता दीजिएगा किसानों का बड़ा इशू चल रहा है, किसानों को आप इस तहरीक में अपने साथ लेके चले गए, क्योंकि किसानों को इस दफा बहुत ज्यादा जुल्म किया गया है, गंदम नहीं खरीदी है हुकूमत की जानिब से, किसान बेचारा सड़कों पे आ गया है। किसान के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और कदम कदम भर उनके साथ हैं। बहुत मजलूम है इस वक्त, ख़ासतौर पर पंजाब का जो किसान है। यानी आपके पास अगर 45 लाख टन गंदम मौजूद है, फिर आपने 35 लाख टन क्यों मंगवाया? जबकि ऊपर से आपका मौसम भी बर्दाश्त का आ रहा है और पाकिस्तान का अपना गंदम भी आएगा, तो किधर जाएगा ये? लिहाजा आम किसान के साथ जो जुल्म किया गया है इस वक्त, इसका पूछ गछ भी होना चाहिए ना। यानी सिर्फ ये तो नहीं कि किसान पर जुल्म हो गया, अब किसान के रोने में हम उनके साथ शरीक हो जाए, किसान के एहतजाज में हम उनके साथ शरीक हो जाए। जिन्होंने ये जुल्म किया है उनका मुहासबा क्यों नहीं किया जा रहा? सर, के पास आप जा रहे हैं सर, मुख्तलिफ आप जलसे कर रहे हैं, ये बताइए कि सर माजी के तनाजुर में आपने जो टारगेट सेट किए, क्या अचीव करना चाहते हैं सर माजी के तनाजुर? हजरत, जो हमारे मुतालबे हैं कि असरनौ इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और फौज इलेक्शन से दूर रहे, किसी एजेंसी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही नाजायज़ है। इलेक्शन कहना इसको नाजायज़ है, जहां पर उम्मीदवारों से करोड़ों करोड़ों रुपए लिए जाते रहे हों, जहां एक एक सूबे से अरबों अरबों रुपए लेके चले जाते हों, जहाज भर भर के जा रहे हों, असम्बलियाँ बिक रही हैं और कैंडिडेट बेचारे दर बदर हैं, तो ये इलेक्शन होता है जी? हम मुतमईन होंगे इस बात पर कि हाँ, हम वाकई पार्लियामेंट के मेंबर हैं और हम क्या मुल्क के अंदर एक VIP का इस वक्त स्टेटस रखते हैं। इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हम जो कुछ कह चुके हैं इंशाअल्लाह इसी जगह पे मामला को पहुंचाएंगे कि मामला ठीक हो जाए। मौलाना साहब, आलमी जो सियासत है उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। आज से 2 रोज़ कबल इंडिया ने ईरान की चाह बहार जो पोर्ट है उसका 10 साल के लिए जो है वो ले लिया, उसका कब्जा लिया है और 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं, जबकि अमेरिका ने हमें तो मना किया है पाबंदी की वजह से कि आप अपनी गैस पाइपलाइन आगे नहीं जा सकते, कोई तजारती मुआहदा नहीं कर सकते, तो इस दौर में इंडिया का उसके साथ मुआहदा और 10 साल के लिए? हज़रत, एक तल्ख सवाल है जो आपने किया है और दुख होता है इंसान को। निकले थे हमसे। मौलाना फजलुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहा कि हमारा मुतालबा है हुकूमत मुस्ताफ़ी हो और दोबारा इलेक्शन हो। मुझे नहीं लगता ये हुकूमत ज़्यादा देर चल सकती है। ये भी कहा कि 2018 में PTI से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। प्रायोरिटी दी गर्म पानी तक पहुँचने के लिए और बैनुल-अक़वामी तिजारत के शाहराह पाकिस्तान को करार दिया उन्होंने। हमने उनको क्या जवाब दिया? आज पाकिस्तान में तमाम मेगा प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं। वो जो
1.5 साल की हुकूमत थी, उसमें भी जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे, अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि उनका क्या बनेगा, क्या वो हमारे अगले बजट में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है कि आपका अफगानिस्तान के साथ भी झगड़ा, और जाहिर है जी कि हमारे ऊपर तो ये लोग जोरावर हैं, ना हक पर होते हुए भी आपको कहना पड़ेगा कि तुम हक पर हो, ना हक पर होते हुए भी आपको कहना पड़ेगा कि तुम हक पर हो। नतीजा क्या निकलेगा कि वाखान के रास्ते से अफगानिस्तान चीन के साथ डायरेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान से बेनियाज हो जाएगा, और हेलमंद के रास्ते से डायरेक्ट हो जाएगा ईरान के साथ, और चाबहार पे जाकर पहुंच जाएगा। तो ये जो घाटे के हम सौदे कर रहे हैं, इस वक्त 6-7 महीनों से चमन बॉर्डर के ऊपर लोग बैठे हैं धरना दिए हुए कि उनको मुतबादल रोजगार नहीं दिया जा रहा, और उधर से उन्होंने अफगानिस्तान के साथ जो लोकल तिजारत होती थी उसके रास्ते भी बंद कर दिए हैं। इस वक्त अंगूर अड्डा के ऊपर जो वाना से जाता है अफगानिस्तान में रास्ता, वहाँ पर लोगों ने धरना दिया हुआ है। गुलाम खान के ऊपर जो मीरान शाह से जाता है खोस की तरफ, वहाँ लोगों ने धरने दिए हुए हैं। आपके जमरोद पर लोगों ने धरने दिए हुए हैं। तो हमने तो उनको बाकायदा ब्रीफ किया था कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आने वाले मुस्तकबिल में कि अगर ये सीपैक खैबर पख्तूनख्वा और फिर बलूचिस्तान के जोब से लेकर गवादर तक जाता है, तो 9 गेटवेज हैं जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते से वस्ती एशिया का रास्ता दिखाते हैं, और पूरे वस्ती एशिया जो है आपकी तिजारती आमाजगाह बन जाती। लेकिन हम उसी अफगानिस्तान के साथ मामला पे उलझ रहे हैं, सरहदात हमने बंद कर दिए हैं। अगर मसला दहशतगर्दों का है, क्या चीन को ये एतराज़ नहीं है कि ओल्ड तुर्किस्तान की जो तहरीक है उसके लोग अफगानिस्तान में हैं, और इनके लोग जो है वहाँ चीन में जो है कार्रवाइयाँ करते हैं। ये शिकायत तो चीन को भी उनसे है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की जो मार्केट है उस पर चीन कब्जा कर रहा है, रूस वहाँ कब्जा कर रहा है। और हम इतने पड़ोसी होते हुए, और 20 साल तक हमने जिस उम्मीद पर तालिबान को गिलाफ के नीचे सपोर्ट दिया, आज सब कुछ हम ज़ाया कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ लड़ाई की सलाहियत है। क्या मुल्क को तरक्की देने के दिमाग ख़त्म हो चुका है? क्या मुल्क की तरक्की के पहलू जो है वो हमने नज़रअंदाज कर दिए हैं? सिर्फ लड़ने का पहलू रह गया है। ये इसलिए कि जब आपका बाइख्तियार इदारा जंगजू इदारा होगा। और मौलाना फजलुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहा कि हम धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू कर चुके हैं, दीगर जमातें भी धांधली के खिलाफ एहतजाज का इरादा रखती हैं। कहा कि मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती, ये असम्बली बहुत कमज़ोर है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, सिर्फ PMLN हुकूमत कर रही है। क्या वाकई इलेक्शन धांधली ज़्यादा इलेक्शन के खिलाफ है, या किसी की एक्सटेंशन के लिए, या किसी की एक्सटेंशन के लिए? ये आपके साहबियाना बातें हैं, आपस में गपशप लगाया करो कभी अपने दफ्तर में। कम से कम मुझ जैसे आदमी के साथ ये सवाल बता दीजिएगा कि हुकूमत इस वक्त मुसलसल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि तिजारत बेहतर हो रही है, मुआशी इशारे जो है वो बेहतरी की जाने जा रहे हैं। तो आप इस पे कैसी नजर, खसूसन पंजाब में सर देखें क्या है? देखिए, हुकूमत हो तो इसका जॉब होता है, अपना जॉब का एहसान हम पे न डालें जी। इंटेलिजेंस है तो उसका इंटेलिजेंस का जॉब है, उसका कोई डिप्लोमेट है तो डिप्लोमेसी उसका जॉब है, हुकूमत है तो हुकूमत उसका जॉब है। तो ये उतार चढ़ाव उसके मामूल के मामला में चलता रहता है। लेकिन मजबूरी तौर पर देखना है ना कि क्या आपके मुल्क में माजी की कोई ऐसी पॉलिसियाँ हैं कि जो हम आगे ले जाकर उससे मुल्क को बचाएं और ताकतवर बनाएं? क्या आज हमने कोई तवील मुद्दत ऐसी पॉलिसियाँ दी हैं कि हम अपना बजट आगे बना सकेंगे? हमारा बजट इस वक्त FATF के हाथ में है, IMF के हाथ में है, वर्ल्ड बैंक के हाथ में है। उन्हीं लोगों ने आपके बजट बनाने हैं, और उनको सिक्योर कर रही है हमारी फौज। वो तहफ़्फ़ुज़ देगी उनको, और असम्बली बेबस होगी और कानून साज़ी करेगी। अच्छा मौलाना साहब, मफाद में आप इमरान खान साहब से भी मिल सकते हैं या उनको शामिल होने की दावत दे सकते हैं? देखिए, हर चीज़ बावकार अंदाज से हो, इसमें कोई शक नहीं है कि 10, 12, 13 साल हम एक दूसरे के बड़े मुकाबिल रहे हैं, और हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उनको अगर दूर किया जाता है तो हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से भी इनकार नहीं करेंगे, और मुज़ाकरात के लिए अगर माहौल बनता है तो उसकी भी हौसला अफजाई करेंगे। हम कोई मुस्तकिल झगड़े और जंग और तलखियाँ उसको बाकी रखना
न मुल्क के मफाद में समझते हैं न हमारी सोसाइटी के मफाद में। आपकी तरफ से मौलाना सर साहब, एक ऑफर सबसे होगी इमरान बड़ा- खान के लिए? जी? आपकी तरफ से सर ओपन है इमरान खान के लिए? सर ये जरा वादे कीजिएगा। क्या? कोई अगर आपको जरूरत पड़ती है या आप हजरत मेरे पास उनके 2 वफूद आए हैं, उसके बावजूद उनके लोग जो हैं वो मुझे मुसलसल मिल रहे हैं, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड मिल रहे हैं या मीडिया के सामने मिल रहे हैं तो मिलते हैं, और यही गुफ्तगू चल रही है कि हम किस तरह आपस की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए माहौल बनाएं। मौलाना साहब, वरना एक साहब है जो कि आपको आपका हराया जो गया भी कि मौक़िफ़ होता धांधली है के वो बड़ा खिलाफ तहरीक चलाने जा रहे हैं, धांधली के खिलाफ, क्या आपने जो अफगानिस्तान के खिलाफ एक आवाज उठाई कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ये इसका निशाना बनाया गया आपको जो इलेक्शन हराया गया जिसके खिलाफ आप तहरीक भी चलाने जा रहे हैं इमरान की? ये तो तज्ज़िया करना पड़ता है। क्या अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया अमेरिका के लिए वाकई काबिल कबूल है? मैं समझता हूँ कि वो हर कीमत पर उनको कमज़ोर करने में दिलचस्पी रखते हैं, और कमज़ोर करने के लिए उनके पास पाकिस्तान जैसा मुफीद टूल और नहीं है। इसी तरीके से अगर हम हमास की बात करते हैं, अमेरिका और मगरब की नज़र में वो एक दहशतगर्द तंजीम है। अमारत इस्लामिया भी अभी तक उनके नज़दीक दहशतगर्द तंजीम है, अभी वो ब्लैक लिस्ट से नहीं निकले हैं। अब जब मैं उनके पास जाऊंगा और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए जाऊंगा, या मैं जाऊंगा और फ़िलिस्तीन के साथ यकजहती के लिए मैं जाऊंगा, तो ये उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो उसके बिल्कुल मुतसादिम है। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत पर जब अमेरिका असरअंदाज होगा तो ये चीज़ें जो हैं आप उसका तज्ज़िया करें कि क्या हमें नुकसान पहुँचाने में उनका बेनिफिट है या नहीं है। मौलाना साहब, हुकूमत भी ग्रैंड डायलॉग की बात कर रही है, राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं। तो अगर हुकूमत ग्रैंड डायलॉग को आगे बढ़ाती है तो आप उसका हिस्सा बनेंगे या सिर्फ तहरीक इंसाफ से बात करेंगे? देखिए, इस पर ज़रा वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, हर बात वक्त से पहले कहना ज़रा मुनासिब नहीं। मौलाना साहब, जैसे भी आपने फरमाया कि 10-12 साल की तरक्कियाँ थी और अब आप सियासी तौर पे कह रहे हैं कि सियासी लोग दरवाजे खुले रखते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा पिछले 7-8 सालों में आपकी तरफ से जो इल्ज़ाम होता था वो कहता था कि यहूदी लॉबी है। तो जब ये सियासी तलखियाँ ख़त्म होगी तो आप उनको यहूदी लॉबी से दोबारा मुसलमान लॉबी में कैसे देखेंगे? एक बात ज़हन में रखें, अगर हमने बरसगीर की सियासत में किसी को अंग्रेज़ का एजेंट कहा है या हमने आलमी सतह पर किसी को अमरीकी एजेंट कहा है तो ये उन्वान है, ये उन्वान है, ये गाली नहीं है। मतलब यह है कि जो आलमी सतह पर एक वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक नेटवर्क है और उसके ऊपर जो जोश का एक बालादस्ती है, जब मैं देखूंगा कि मेरे मुल्क को भी उस नेटवर्क के अंदर डाला जा रहा है और यहाँ पर मैं सूद के खात्मे की बात करता हूँ और मैं मुकम्मल तौर पर आलमी सतह पर सूदी निज़ाम के अंदर जा रहा हूँ, उनकी मईशत के उसूलों के मुताबिक चलूँगा, तो इससे मेरा इख्तलाफ होगा। अब इस इख्तलाफ का उन्वान अगर ये है कि यहूदी एजेंट, तो इसको गाली क्यों कहा गया? उसको संजीदगी से लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि कादियानियों को दोबारा मुस्लिम स्टेटस पाकिस्तान में देना ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बजाय इसके कि आप मुझे उसके बदले में गालियाँ दें, आप मुझे मुतमईन करें मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग हैं, उनकी एक सोच है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में मगरबी तहज़ीब को फ़रोग़ दिया जा रहा है और हमारी इस्लामी और मशरक़ी तहज़ीब जो है उसका ख़ात्मा किया जा रहा है, इसके बदले में गाली देने की बजाय मुझसे पूछा जाए, मुझसे बात की जाए। सियासतदान का काम यही होता है। अगर मैंने आपके ऊपर कोई एतराज़ किया है या आपके साथ मैंने कोई एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप फजल रहमान ये बात आप क्यों कर रहे हैं, मुझे आपके सामने अपनी बात रखूं तो आप यहाँ मुझे मुतमईन कर सकें इस बात पर कि मेरा एजेंडा नहीं है, या ये कि ये मेरा एजेंडा है और आपके मुफाद के लिए है, कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। तो ये चीज़ें जो है इनको सियासी तौर पर हम ले रहे हैं, और आज जब उनके लोग आए हैं, अगर ये लोग 12 साल पहले भी आते तब भी मेरे 中国作为对外政治